तालीम की धूम है हर तरफ, इल्म का है ये रोशन चिराग। ISL ही फख्र आता नजर है हर तरफ, नूर उसका फैलता है हर तरफ। Indeed, Sheikh Ansar Ahmed, IAS officer of Bengal cadre. You are most welcome, sir. And I invite Honorable Secretary Sir, Mr. Khaja Hassan, is the Secretary and Correspondent of Ahmed Memorial Educational Society. And because of his hard work and relentless efforts, and I invite ever adorable and respected Executive Director of ISL Engineering College, Janab Naimuddin Husami Sahab, our dynamic and respected Chairman Sir, Mr. Salman Ahmed, a new face of leader. We have been seeing his plans, all innovative plans on the dais today, sir. And to the HODs, I invite HODs, faculty members. This program is your program, and I expect all the students to be very calm and quiet. So in pursuit of excellence, so keeping this in mind, in pursuit of excellence, we have done remarkable work to arrange a campus training program for that. A beautiful dua which instills a sense of patriotism with the help of the Almighty. I hereby call upon Umar from EEE first year to come and mesmerize us with his beautiful voice. आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लगते आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। 17 is the culmination of all the programs that ISL has conducted. Its lights, camera and mayhem. Imagine, improve, implement. Esprit 17 is a platform for students to showcase their skills. An explosion of creative innovations. An arena to excel and prove themselves. An event bombarded with talents. Ideas are like legs. What good are they if you can't run with them? Everything begins with an idea. Ideas provoke imagination.
Imagination thrives for improvement, and these together with proper implementation makes a dynamic engineer. Spirit 17 sets the stage for all these dynamic ISLites to perform, to innovate, to create, and to excel. Who knows, Spirit may cultivate many more sparkling young minds that will set the gears of bright change in motion on a magnanimous scale. Let's hope that Spirit 17 is everybody. Over to you, Razia. I would like sir to kindly present the bouquet to Secretary sir. Chairman of Islamia Group of Institution, Mr. Awais. I request Roshina to kindly present the bouquet to President Madam. Next, I request Akif to present the bouquet to Chairman sir. Mr. Salman Ahmed to present the bouquet to Mr. Naeem, our Finance Minister. Thank you. The poems of the Urdu language in his time, one would definitely assume it to be the melody of Sare Jahan Se Acha. Let's welcome Rayan, who will be playing the keyboard, and Anas Sharif with his group to create a sense of patriotism among us with his voice. Over to you, Anas. सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया, वो संतरी हमारा, वो पाज़वा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। Please switch it off. I am also as excited as you people are. The only thing is, I have a formality, so I cannot whistle with you people. Honorable Chief Guest for today, Shri Ansar Ahmed Sheikh Sahab, Honorable Secretary Ahmed Memorial Educational Society, my father, Janab Khaja Hassan Sahab, Honorable President, my mother, Madam Javida Begum Sahaba, and Chairman, Islamia Group of Educational Institutions, Awais Ahmed Sahab, Yakutpura, Executive Director, my uncle, Janab Naeemuddin Husami Sahab, Director, ISL Engineering College, SD Basha sir. A huge appraisal for the organizing committee of Spirit 17. Please give a round of applause to Zarina Madam and Mateen Madam. My sincere gratitude to the editorial board of college news, Rahman, Sufia, Fawad and Samia. Outstanding job, students. I never expected the college newsletter to be as grand as this. Inshallah, in the later part of the program, we'll get a copy of that by releasing it officially. My congratulations to the website development committee who has been associated with me for a long time now. Mahmood Gauri, Ayaz and Jafar bin Badar of CSE 3rd year. Video game developers,
you are going to showcase the teaser today. I know it's going to be, we all are eager, sir. First of all, thank you so much for accepting our invitation. कुछ तो बात है साहब की यहाँ पर आने में कि उन्होंने हमको उस काबिल समझा हमारे साथ टाइम बिताने में. I normally give speeches impromptu, sir, but at the status I needed to be very formal. But college students don't like formal speeches, so what I did was I wrote a poem for you, both in English and Hindi and Urdu all together. If you people can lend me ears and please listen it with great enthusiasm. It's a mixture of all. Not always I see people live their dreams in daylight. Not always did I have the courage to praise, for one day I met a gentleman named Ansar Sheikh. With whom did I just rub my eyes to see if it is true? True to his profession, I found in him an avatar, a perfect representative of Bharat Sarkar. They said, make your dead dreams arise. Then he flew down on request as he is an embodiment of rectitude, for which the staff, students and management of ISL stand in all gratitude. Everything miserable, no wonder people said Ansar is unbeatable. Yet he held his hopes high and dreamt with never-ending sigh. Clearly the making of a man that he could fly. Yet he held his hopes high. I'm sorry. Please listen very calmly. These are very serious issues. His mother, before I complete his poem, I need to inform you that here is a gentleman who is from a very humble background, very poor background. He did not have, for days he did not have food to eat. His father wanted him to drop out of school, yet his teachers told him to pursue him with his education. His father is an auto rickshaw driver and his mother worked in fields as a laborer. Now we have a gentleman amongst us who is an Indian Administrative Services officer. I think what better guest today is a perfect opportunity for my students to listen from a person who has struggled all his life to achieve his dreams. His mother walked miles in fields of misery. His father drove auto and then one day Almighty Allah blessed him with all his glory. एक बात सीखी तो है इन्होंने रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है. बिखरा ये था घर से, गांव से और समाज से, पर बिछड़ा नहीं था ये अपने सपनों से और आशाओं से. कण कण उसकी ऊर्जा से ढली थी, पल पल उसने जो तकलीफें सही थी, फिर आया वो पल उसका जब थम गया था जीवन इसका. 361वां ऑल इंडिया रैंक का था वो अधिकारी, मिल गई उसे वर्दी सरकारी. सिखाया तो इसने है वक्त को सबक कामयाबी का. सुनो सुनो सुनाता हूं मैं कल रात की एक कहानी. सर हाई टेबल. सुनो सुनो सुनाता हूं मैं कल रात की एक कहानी, थी उसकी बात में जश्न और रवानी. जोश था, उल्लास था, प्रेम था और भी बंदे में थी सादगी. तोड़कर हमारे साथ निवाला, बढ़ाई आपने इज्जत हमारी. इंडिया क्या कोई जानशी तो नहीं देखा आज हमने अंसार में, अंसार में, अंसार में. थैंक यू सो मच.
ISL के चेयरमैन, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेक्रेटरी और अन्य जो डिग्नेटरीज हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली ISL कॉलेज के चेयरमैन सलमान सर, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ 2 चीज़ों के लिए। पहली चीज़, उन्होंने मुझे यहाँ पर इतने अच्छे कॉलेज में बुलाया और आप जैसे लोगों से, आप जैसे एनर्जेटिक स्टूडेंट से बात करने का मौका दिया। दूसरा रीज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, हैदराबादी बिरयानी खाने का मौका मुझे यहाँ आने की वजह से मिला। क्योंकि बहुत बार मैं औरंगाबाद से हूँ, वैसे मैं जालना डिस्ट्रिक्ट से हूँ नेटिवली। अभी मैं मेरी फैमिली के साथ औरंगाबाद में रहता हूँ, जो मराठवाड़ा रीजन का पार्ट है। हैदराबाद और मराठवाड़ा पहले एक ही निज़ाम स्टेट का पार्ट था, तो काफ़ी सारे कल्चरल सिमिलरिटीज़ आप में और हम में हैं। हम लोगों की लैंग्वेज जो है मेरे पास ही है, लाइक वो लैंग्वेज, वो खाना, वो कल्चर, वो सारी चीज़ें हम में एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप लोगों के सामने बैठकर और कुछ अपनी बातें शेयर करने से खुशी हो रही है। आई डोंट नो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। एक बार पुणे में था, पुणे में पढ़ाई कर रहा था, तो फर्स्ट ईयर का मैंने BA बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया है। तो मैं सर से कहना चाहूँगा कि मैंने जब सर ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और कल मैं यहाँ पर आया, तो मेरे दिल में बहुत बड़ा डाउट था, क्योंकि मैंने सर से कहा कि सर मुझे लगता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ एज ए चीफ गेस्ट आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं BA का एक स्टूडेंट हूँ और आपने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। तो फर्स्ट ईयर था मेरा, फर्स्ट ईयर चल रहा था, छुट्टियाँ चल रही थी और मुझे सेकेंड ईयर से IAS बनने के लिए एग्जाम की तैयारी शुरू करनी थी। और उस तैयारी शुरू करने के लिए किताबों की ज़रूरत थी और किताबों के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं पर पुणे में रहकर कोई जॉब कर लूँगा। तो जॉब कर रहा था, एक कोचिंग क्लास था NDA का, उसमें एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा था। वहाँ पर एक बच्चा आया करता था जिसको NDA ज्वाइन करना था, वो कोचिंग में आया करता था। उसके अब्बू उसको लेकर आते थे, उसके अब्बू ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, मुझे लगता था ऑटो रिक्शा ड्राइवर होने की वजह से। तो थोड़ी बहुत बातें उनसे हो जाती थी। एक बार वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अंसार, मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। अगर तुम मेरा हाथ दिखा दो मुझे, तुम्हारा हाथ, तो मैं तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम क्या बनने वाले हो। अब भविष्य जैसी चीज़ पर मेरा कोई बिलीव नहीं है, मैं बिलीव नहीं करता। नसीब नाम की चीज़ पर भी मैं बिलीव नहीं करता। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा, अब मुझे लगा कि चलो वो लोग फ्री में ही देख रहे हैं, तो फ्री में दिखाने में क्या ही हर्ज है, तो फ्री में मैंने दिखा दिया। तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम क्या बनना चाहते हो ये बताओ। तो मैंने कहा मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखकर बताया कि बेटा सॉरी, तुम IAS नहीं बन सकते, तुम स्टेट सर्विस की तैयारी करो, क्लास B का कोई सर्विस तुम्हें शायद मिल जाए। आज वो ये प्रूव हो गया है कि वो गलत है। मैं एक IAS ऑफिसर आज बन चुका हूँ। इससे एक बात साबित होती है कि नसीब न उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। अपनी 22 साल की जिंदगी में मैंने इतने दुख और दर्द झेले हैं कि जिस वजह से अगर मुझे यहाँ पर चेयर पर बैठा हुआ देखोगे तो कई लोगों के दिल में ख्याल आएगा कि अरे 22 साल की उम्र में IAS ऑफिसर बन गया, इसका तो बहुत अच्छा है, नसीब वाला लड़का है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं अपनी IAS एक झोपड़पट्टी में हुआ था, जालना डिस्ट्रिक्ट, मराठवाड़ा रीजन, महाराष्ट्र में। हमारे झोपड़पट्टी में मेरा जन्म हुआ था। मेरे अब्बू तब रिक्शा चलाते थे, मेरे अम्मी लोगों के खेतों में जाकर काम करती थी। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। विलेज में, हमारे घर में मैंने हर वो चीज़ देखी थी जो आप हमारे सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस देखें तो वो मैंने मेरे अपने घर में देखा था। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वो मैंने खुद फेस किया था। अगर आप गरीबी की बात करें तो मैं एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जो फैमिली होती है, BPL फैमिली, उसको बिलोंग करता था। मेरे अब्बू एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। और अगर आप कहें चाइल्ड मैरिज जो होता है वो मैंने अपने घर में देखा था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चाइल्ड भी जी रहा था उस तरह से। अगर आप सोचे तो ये जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर एक जो था उजाला जिसे कहेंगे हम, या रोशनी की किरण अगर आप जिसे कहें, वो रोशनी थी। क्योंकि मुझे बचपन से ही स्कूल में जाना, पढ़ना बहुत पसंद था।
तो मैं जैसे अपने आपको मैंने बताया कि मैं मराठवाड़ा से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है वो मराठी है। तो मराठी मुझे बहुत अच्छे से आती थी। मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, हिंदी अच्छे से बोल पाता हूँ, बांग्ला भी सीख चुका हूँ। मराठी बहुत अच्छा था मेरा स्कूल का। सो मराठी में हमारा स्कूल था, तो स्कूल में काफ़ी मुझे मज़ा आता था, क्योंकि स्कूल में जैसे होशियार बच्चा माना जाता है स्कूल का, वो मैं हुआ करता था। पढ़ने की आदत थी, तो जो बड़े बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो चुके हैं उनके चरित्र में पढ़ता था, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता था, बायोग्राफीज पढ़ता था, उनके ऊपर किसी ने अगर कोई किताब लिखी है तो वो किताबें पढ़ा करता था। और वो किताबें पढ़कर ऐसा लगता था कि मैं भी इनकी तरह कुछ बड़ा बड़ा बनूं, बड़ा करूं। फिर स्कूल में जब भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी होती थी, तब स्कूल में प्रोग्राम अरेंज किया जाता था, 100-10 रुपए का इनाम भी मिल जाता था। स्कूल के जो टीचर होते थे उनकी शाबाशी मिलती थी, तो काफी अच्छा लगता था। तो घर पे इतना तो बहुत मजा आता था, अच्छा लगता था। मुझे तो ऐसा लगता था कि संडे के दिन भी स्कूल शुरू होना चाहिए। तो मजा आता था स्कूल की लाइफ में, लेकिन फिर भी स्कूल का जो टाइम था वो काफी डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि बहुत कम पैसे मेरे पास होते थे। मेरे पास स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं होता था, और हमारी स्कूल काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जो बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में नहीं आएंगे, उनको स्कूल में जब सुबह असेंबली होता था तो असेंबली के वक्त सबको सामने बुलाकर उनको मारपीट की जाती थी डिसिप्लिन की वजह से। तो मुझे अमिताभ बच्चन काफी पसंद थे, तो मैं जब भी स्कूल का यूनिफॉर्म सिलाता था तब उनका जो डॉन मूवी का बेल बॉटम स्टाइल का जो पैंट आता था वो सिलाता था, वो काफी फिटिंग का होता था। तो जब हम लोग मौज मस्ती करते थे स्कूल में तो पैंट वगैरह फट जाता था, फिर फटा हुआ पैंट पहनकर तो स्कूल में नहीं जा सकते, इसीलिए कलरफुल कोई पैंट पहनकर जाना पड़ता था। फिर अगर यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो टीचर मारपीट करेंगे, और चूंकि मैं स्कूल का सबसे फेवरेट हुआ करता था तो सबके सामने, और उसमें भी लड़कियों के सामने मार खाना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं क्या करता था, हमारे स्कूल का एक कंपाउंड वॉल हुआ करता था, तो मैं जब भी असेंबली शुरू हो जाता था तो असेंबली शुरू होने से पहले उस कंपाउंड वॉल के पास जाकर बैठ जाता था और छुपके से देखता था कि कब असेंबली खत्म होता है, राष्ट्रगीत खत्म होता है, मारपीट खत्म होती है, और फिर सब लोग अपने अपने क्लासरूम में जाते हैं। सब लोग अपने क्लासरूम में जाने के बाद मैं चुपके से जाकर क्लास में बैठ जाता था। सवाल आया कि अब 10th तो हो चुका है, अब क्या करना है लाइफ में। बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसा सवाल होता है, और हमारी सोसाइटी में मेनली ऐसा होता है कि जो लोग 80 से 90% के बीच में मार्क्स लाते हैं वो लोग साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, जो उनसे थोड़े कम लेकर आते हैं 70 तक वो लोग कॉमर्स में जाते हैं, और जो उनसे नीचे वाला कचरा होता है, जिसको कचरा कहा जाता है इंडियन सोसाइटी में, वो लोग आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं। क्योंकि मैं हमारे स्कूल का टॉपर था, मुझे सब लोग ये सजेस्ट कर रहे थे कि तुम साइंस लो, लेकिन मैं बचपन से मैथमेटिकली चैलेंज था। मुझे मैथमेटिक्स पसंद नहीं था, मुझे मैथमेटिक्स आती नहीं थी, साइंस भी मुझे पसंद नहीं था, इतना मुझे पता था। तो बहुत कंफ्यूज था क्या करना चाहिए लाइफ में। एक बात उसके पहले की आपको बता दूं, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, होशियार था मैं, तो 4th स्टैंडर्ड के बाद हमें 4th स्टैंडर्ड से निकालकर 5th में डालना था, तो उसके लिए टीसी निकालने की जरूरत होती है। तो मेरे अब्बू को किसी ने बताया, मेरे अब्बू रिक्शा चलाते थे, किसी ने बताया कि देखो पढ़ा लिखा कर इसको कौन सी नौकरी लगनी है। बहुत बार हमारे जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी में कई बार हमको ये कहा जाता है कि पढ़ लिख कर तुझे कौन सी नौकरी लगनी है, तो एक काम कर, तेरे बच्चे को 4th स्टैंडर्ड तक अच्छा हो गया है, पढ़ना लिखना आता है, उसको स्कूल से निकालो, किसी काम पर लगा दो। मेरे अब्बू बेचारे अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं हमारे पूरी जनरेशन का, अगर डार्विन की थ्योरी को सच माना जाए तो बंदर से लेकर अब तक की जो जनरेशन रही है हमारी, उससे लेकर अब तक का मैं फर्स्ट 10th पास हूँ, फर्स्ट 12th पास हूँ और फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। तो मेरे अब्बू पढ़े लिखे नहीं थे। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, पडुलकर सर उनका नाम है, उनको मैं हमेशा जब भी घर जाता हूँ जाकर मिलता हूँ, अभी काफ़ी एज हो गई है उनकी। तो उन्होंने मेरे अब्बू से कहा कि देखो आपका ये बच्चा बहुत होशियार है, अगर आप इसको मेहनत से पढ़ाएंगे तो ये आपका नाम रोशन कर देगा, आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। अब मेरे अब्बू तो अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ लोगों की खासियत ये होती है कि जब अगर कोई टीचर उनको कोई बात बताता है तो वो बात उनको बहुत उनके दिल को छू जाती है, वो कन्विंस हो जाते हैं। तो मेरे अब्बू कन्विंस हो गए, फिर उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने का डिसीजन लिया। अनफॉर्चुनेटली मेरी 2 सिस्टर्स ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। मेरा छोटा भाई जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था वो भी पढ़ नहीं पाया, 6th स्टैंडर्ड में था तब उसने स्कूल छोड़ दी। बात यह है कि मेरे उस टीचर की वजह से मैं आगे पढ़ पाया। था कि अभी आगे लाइफ में क्या करना है। उसी वक्त मेरे टीचर थे, मेरे क्लास टीचर थे, मापारी सर उनका नाम था, वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट सर्विस कमीशन होता है, उसकी एग्जाम देकर एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने थे। तो मुझे भी ऑफिसर बनना था, तो मैं सर के पास गया।
छुट्टियां चलती थी, शायद इलेक्शंस होते होंगे, क्योंकि कलेक्टर होता क्या है, दिखता कैसे है, कुछ पता नहीं था। तो सर को कहा कि सर मुझे ऑफिसर बनना है, तो कैसे बना जाए। तो सर ने कहा देखो एक एग्जाम होता है, उसका प्रीलिम मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, तीनों स्टेज अगर तुम क्लियर करते हो तो तुम ऑफिसर बन सकते हो। तो मैं काफी घबराया हुआ था। मैंने सर से कहा कि सर लेकिन मैंने सुना है कि इंटरव्यू लेते वक्त वो लोग आपसे पैसा मांगते हैं नौकरी देने के लिए, तो आपसे उन लोगों ने पैसा मांगा था। सर में था तब हमें इंदिरा आवास योजना के तहत जो गरीब फैमिली होती है उनको सरकार की ओर से घर दिया जाता है, उसके तहत हमको 30,000 रुपये मिले थे घर बनाने के लिए। अब वो बढ़कर 1,20,000 रुपये हो गए अभी। तब 30,000 मिला करते थे, मेरे अब्बू को मिले थे। मेरे अब्बू उसका चेक लेने के लिए पंचायत के ऑफिस में जब गए थे, वीडियो ऑफिस में, तो वहाँ के ऑफिसर ने मेरे अब्बू से 3,000 रुपये की घूस ली थी। और वो मुझे जब मैं 10th में था तब पता चला था। तो जब मुझे पता चला काफ़ी दुख हुआ मुझे, क्योंकि जब मुझे 2 रुपये का पेन लेना पड़ता था, आप इमेजिन कीजिए घर में इतनी गरीबी है, घर में मेरे अब्बू 100-150 रुपये कमा कर लाते थे, उसमें पूरा घर चलता था और उस रिक्शा का मेंटेनेंस भी होता था, घर का भाड़ा होता था। तो 2 रुपये का पेन अगर मुझे लेना हो तो 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं मेरे अब्बू से 2 रुपये कैसे मांगूं। और मेरे अब्बू ने खुशी से 3,000 रुपये ऑफिसर को रिश्वत दे दी थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि करप्शन ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और अगर इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना है तो ज़रूरत है कि जिन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन देखा है उन लोगों ने उस चेयर पर बैठना चाहिए। और उस दिन डिसाइड किया कि मैं उस ऑफिसर से भी बड़ा ऑफिसर बनूंगा। पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तब उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा, किसी ने कहा मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगा, किसी ने कहा वहाँ जाने के बाद किसी कोचिंग क्लास में मैं तुम्हारे एडमिशन करा दूंगा। ऐसे बहुत सपने लोगों ने दिखाए, लेकिन जो होता है ना कि बहुत बार जो लोग वादे करते हैं वो वादे ही रह जाते हैं। तो वो वादे ही रहे, किसी ने वो वादे निभाए नहीं। फिर मेरे अब्बू ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम पूना जाओ, मैं रिक्शा चलाकर जो भी मेरी आमदनी होगी उसमें से पैसा सेविंग करके तुम्हें भेज दूंगा। फिर मेरा भाई जो मामा के यहाँ पर काम कर रहा था उसने कहा भैया आप टेंशन मत लो, मुझे 4-5 हज़ार रुपये महीने का मिल जाता है, वो सारा पैसा मैं आपको भेज दूंगा। इन दोनों की बदौलत मैंने पूना में जाने का डिसीजन लिया। पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज में मुझे एडमिशन मिली और कॉलेज का पहला दिन शुरू हुआ। बीए कर रहा था मैं, इंग्लिश मीडियम गया है तो काफ़ी हिस्टोरिकल कॉलेज है, काफ़ी फेमस है, फॉरेन से वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे कॉलेज में मैं गया। जब मैं पूना गया आपको बता दूं मेरे पास सिर्फ 2 शर्ट्स थे, टी शर्ट्स थे, एक पर्पल कलर का और एक रेड कलर का, ये 2 ही शर्ट्स थे। 2 जीन्स की सिंपल सी पैंट्स थी और एक थैली थी और एक स्लीपर थी। इतना ही लेकर पूना में गया। का टाइम था तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब आप स्लीपर पहनकर बारिश में कीचड़ में चल रहे हो तो आपकी पैंट के ऊपर पीछे से साइड से कितनी अच्छी सी डिज़ाइन निकलती है इस कीचड़ की। तो वो कीचड़ की डिज़ाइन लेकर मैंने कॉलेज में एंट्री की। काफ़ी सहमा हुआ था क्योंकि वहाँ पर अच्छी गाड़ियों से आने वाले स्टूडेंट थे, अच्छे कपड़े जिनके पास थे वो स्टूडेंट थे, जिनके पास अच्छे मोबाइल है वो स्टूडेंट्स थे, जो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते थे वो स्टूडेंट्स थे। और उनमें मेरे पास ना तो ढंग के कपड़े थे, ना कोई मेरे पास किताबें थी, ना ही मेरे पास कोई अच्छे गैजेट्स थे और ना ही मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाता था। कॉलेज का पहला दिन शुरू हुआ, मैं जाकर कोने में बैठा हुआ था और जैसे आपको पता है कि पहले दिन सबसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि भाई बताओ आप कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हैं। तो हमारे क्लास में 300-350 बच्चे थे, उनमें से सब लोग ऑलमोस्ट लोगों ने जो जवाब दिए थे उनको क्या बनना है, तो सब कह रहे थे कि मुझे IAS बनना है, IAS बनना है। तो इन सबको देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि ये लोग तो मुझसे इतने आगे हैं, मैं तो इतना बैकवर्ड रीजन से आता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इन लोगों के पास तो सब कुछ है, ये लोग कोई नौकरी कर लूंगा ऐसा बताऊंगा उनको। लेकिन जब तक मेरा नंबर आया पता नहीं कहाँ से मैं खड़ा हुआ और खड़ा होकर जब मुझे पूछा कि बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने कहा कि सर मैं भी IAS बनना चाहता हूँ। आज सिचुएशन ये है कि मेरे बैचमेट्स में से उन लोगों में से मैं अकेला IAS बन पाया हूँ। मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की। इन 2 सालों में मैंने अपने आप को बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई से अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होने दिया। बहुत पढ़ाई मैंने की, आपको बता दूं 10 घंटे से लेकर 12 घंटे तक, कभी कभी 14 जेरॉक्स में कर लेता था क्योंकि जेरॉक्स काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। तो इस तरह से पढ़ाई चल रही थी, 10-10 12-12 घंटे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। फिर जून 2015 में मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, मेरा ग्रेजुएशन होते हैं वो लोग IAS बनते हैं। तो उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था अगस्त 2016 में और आप मान लीजिए मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, ग्रेजुएशन खत्म हुआ है जून में। उसके 2 महीने के बाद ही मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया। वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट सितंबर में आया
मैं वो एग्जाम क्लियर कर चुका था। 5 लाख लोगों में से 15,000 लोग चुने गए थे, उन 15,000 लोगों में मैं था, बाकी के लोग नहीं कर पाए। उसके बाद उन 15,000 लोगों का मेंस का एग्जाम पास हो चुके हो, ये बहुत बड़ी राहत थी मेरे लिए। 15,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, उन 15,000 लोगों में से सिर्फ 3,000 लोगों को सेलेक्ट किया था, 12,000 लोग उस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और आपको बता दूं, ये एग्जामिनेशन मैंने मराठी मीडियम में दिया था, मराठी मीडियम से मैंने लिख दिया था। 60% मेरी जो पढ़ाई थी वो मैंने इंग्लिश से की थी, लेकिन आंसर जो मैंने लिखे थे वो मैंने मराठी में लिखे थे। तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा अंग्रेजी में पढ़ना, फिर उसको समझकर ट्रांसलेट कर मराठी में लिखना। तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिसमें से लगभग 1100 लोगों को फाइनली सेलेक्ट किया जाने वाले था। दिल्ली में इंटरव्यू होने वाला था, 40 दिन में दिल्ली चला गया, वहां पर मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैंने किया, मॉक इंटरव्यू दिए, खुद को ग्रूम किया। और उसके बाद 7 अप्रैल 2016 मेरा इंटरव्यू का दिन था। उस इंटरव्यू के दिन में लाइफ में पहली बार सूट बूट पहन कर गया, जो मुझे पसंद नहीं है, वो कर मैं वहां पर गया, क्योंकि पहनना पड़ता है इंटरव्यू में। वो पहनकर मैं उस इंटरव्यू में गया। वहां पर बाहर काफी सिक्योरिटी थी, बड़े बड़े ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, आर्मी के जवान जो जल्दी खड़े थे वहां पर, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे हर जगह। और मैं काफी घबराया हुआ था, क्योंकि मैं 21 साल का ही हूँ, आपसे 21 साल का था। तो आपको बता दूं कि अगर ये एग्जामिनेशन आपको देनी है तो 2 क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। एक तो आपका डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है, और सेकेंड आपका एज मिनिमम 21 होना जरूरी है, मिनिमम। तो मेरा मिनिमम ही था 21 था मेरा एज, और वहाँ पर मैं काफी छोटा लग रहा था। आपको बता दूं कि अनुसार आप शिया मुस्लिम हो या सुन्नी मुस्लिम हो, ये सवाल सुनने के बाद 1 सेकंड का भी वेट ना करते हुए मैंने उनको इमीडिएटली आंसर दिया कि सर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, शिया सुन्नी चीजों को। आप इमेजिन कर सकते हो इंटरव्यू का दिन, जो इतना अहम दिन होता है हमारी लाइफ का, 275 मार्क्स होते हैं और उसमें से एक एक मार्क को बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। उस माहौल में मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ, मुझसे बहुत सिंपल सवाल किया गया है और उसका मैं ऐसा जवाब दे रहा हूँ, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो लोग कितने खुश होंगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अनुसार ये बताओ, अपने जिंदगी में, छोटी सी जिंदगी में, बचपन से लेकर आपके एजुकेशन तक आप में से कितने लोगों ने गरीबी का एहसास आपको है? क्योंकि मैं जिस तरह से आपकी आवाजें सुन रहा हूँ उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग यहाँ पर है जिनको पता है कि गरीबी क्या होती है। तो वो गरीबी मैंने फेस की थी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो रिजल्ट के दिन मेरे दोस्त ने मुझे जो बताया, वो वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि जिंदगी भर में जो स्ट्रगल किया था, उसको वो एक स्ट्रगल था ये कि आप किसी अमीर फैमिली से होने चाहिए, या ये जरूरी नहीं है कि आपने अंग्रेजी आपको फ्लुएंटली बोलना चाहिए, या ये जरूरी नहीं है कि आपको हैदराबाद, पूना, मुंबई या दिल्ली जैसे सिटी से ही आना चाहिए। आप अगर एक विलेज से आते हो, देहात से आते हो, तो भी आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने प्रूव की थी, काफ़ी खुशी हुई, बहुत खुश हुए हम सब लोग। और मेरा रिजल्ट आने के बाद अभी मुझे वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग मिली है, जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सामने आकर, आप लोगों से बात करके। मुझे पता नहीं कितना मैं आप लोगों को, कितनी बातें आप लोगों तक पहुँचा पाया, लेकिन और 2-3 बातें हैं जो आप लोगों से शेयर कर, बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much. Academic recipients to kindly assemble backstage. Moving on, here comes the most awaited time of the event. I'm sure this was the most trending. एक मिनट सर।
Grown up without a civilization collapsing, the bad reputation still persists. To stand up and erase out the stigma associated with video games and to check out the technical ability of the students of ISL who have reached the pinnacle of their ideas and creativity under the supervision of Surya sir. I would like to invite Secretary sir and the game developer team members, Mahmood Ghauri, Muhammad Ayaz, Muhammad Khalil Junaidi securing 79.5%. Second prize goes to Mirza Musawir Ahmad Bey, 78.5%. Third prize goes to Rizwan Hussain, securing 77%. Moving on to CSE department, second semester. First prize goes to Mehraj Begum, securing 7.74 GPA. Department, second semester. First prize goes to Mehraj Begum, securing 7.7 GPA. Second prize goes to Asna Moni, securing 74.4%. Third prize goes to second year, second semester. We have Muhammad Burhan Yarbagi. we have our national anthem. Please stand up. एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो चंद्रांगता बंगागुड़े पे वाक़ है, उसके तहत आज हमारा एनुअल प्रोग्राम स्पिरिट 17 हुआ है, जिसके चीफ गेस्ट हमारे बहुत ही अजीज़ जनाब अंसार अहमद शेख साहब जो IAS है, कोलकाता कैडर के अभी हैं, एंड उनकी जो कहानी है, जिस हम्बल बैकग्राउंड से वो आते हैं और जिस मशक्क़त के साथ, मेहनत के साथ उन्होंने अपनी इस कामयाबी को अंजाम दिया है। ऑल इंडिया रैंक में 361 आना और 8 लाख कैंडिडेट्स में 361 रैंक लाना, वो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए काफ़ी इंकरेजमेंट की बात है। अब ये एक रीज़न था कि हमने उनको बार बार 1 साल से उनके पीछे रिक्वेस्ट करते करते आज वो आए हैं, जिसकी वजह से हमको सबको बहुत खुशी हुई है। और उनके जो गोल्डन वर्ड्स हमको जो सुनने को मिला है, आई एम श्योर यहाँ पर बहुत इंकरेजमेंट और मोटिवेशन स्टूडेंट्स को मिला है। ये इंकरेज, देखिए इंजीनियरिंग की तालीम जो है, ये तो बस डिग्रीज़ की बात नहीं रहती है। कॉलेजेस में सीखना सिखाने का जो मामला होता है, वो मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। बच्चे की कामयाबी नाकामयाबी वो इसकी अंदरूनी कैफियत पे डिपेंड करती है। जब एक बंदा इतनी हम्बल और इतनी छोटे तबके से उठकर इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है, तो कुछ तो बंदे में बात होती है। तो उसके माँ बाप जो ऑटो ड्राइवर है और माँ जो उसके फार्म फील्ड्स पे जो मेहनत कर बच्चों को पढ़ाए हैं, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों में ऐसे जितने ज़्यादा सितारे चमकेंगे,
उतनी हमारे कौम की तरक्की हो पाएगी।